हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास। और बच्चों, आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन अगर आप इस टॉपिक को देखें तो इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड यू माइट गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक इन योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। सो जो आज का टॉपिक है इट इज फ्रॉम यूनिट 2 एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग। और आज हम ले रहे हैं क्लास नंबर 10 सेम यूनिट में से। और जो आज का टॉपिक है वो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। तो आज की क्लास में हम जो भी डिस्कशन करेंगे इट इज बेस्ड ऑन द टर्म कोऑपरेटिव्स या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर द पॉइंटर्स अंडर डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म कोऑपरेटिव. Second point is the Indian Cooperative Societies Act of 1912. The list of all the features. Entrepreneur does not find this form as a very desirable. No form is without merits and limitations. So बच्चों, आज की क्लास में हम इन सारे पॉइंटर्स को डिस्कस करेंगे and I am going to tell you all the details about cooperative organization. So जो भी बच्चे 11th और 12th ग्रेड के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं सब्जेक्ट की, they should be the part of this channel. Regularly we are putting in classes as per the CBSE guidelines from your book. And it is recommended that you should attend all these classes because these classes are not only lectures but they also contain rigorous practice sections of each and every class. So in 1 hour, you can understand the concept, you can take up the questions, you can take up true and false statements, you can take up fill in the blanks, you can take up objective type questions, you can take up vocabulary. So we are leaving no stone unturned in order to teach our students, in depth, the concepts of entrepreneurship. So let's start with the first point. Let's understand the term cooperative. Let's take up the first point. A cooperative is a different form of business enterprise, as here the main motive is not earning profit but mutual help. तो बच्चों, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, but their main motive is not about earning money. Their main motive is about providing employment to people, sharing profits with them. And it is not only about earning profits, it's about providing livelihood to the people as well. It works with the principle of each for all and all for each. तो इस पर आपने ध्यान देना है that it works on this specific principle, that is each for all and all for each. So I'm going to clip this point, it's an important one. Second point, cooperation is a form of organization wherein persons voluntarily associate together as human beings on the basis of equality for the promotion of the economic interest of themselves. तो बच्चों, इन्हें कोऑपरेटिव इसलिए कहा जाता है बिकॉज द वर्ड हैज बीन इनहेरिटेड फ्रॉम द वर्ड कोऑपरेशन। और यहाँ पर लोग अपनी मंशा से, अपनी डिजायर से वॉलेंटरली एसोसिएट होते हैं and they become the part of these organizations together as human beings on the basis of equality. सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस में फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देमसेल्व्स। और सबको जब इक्वल पैसा दिया जाता है तो एवरीबॉडी वर्क्स टुवर्ड्स द कॉमन गोल, दैट इज टेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन अहेड।
और जो ये सेकंड स्टेटमेंट है, इसको कहा था H.C. कैलवर्ट ने. द सेकंड स्टेटमेंट वाज बीइंग स्टेटेड बाय H.C. कैलवर्ट. सो बच्चों, कई बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ जाता है that define a cooperative organization on the basis of the words of H.C. Calvert. So I have given you it over here. I have explained it to you, and it is going to work well with you so that you can understand the upcoming slides. So basis of upcoming slides is that you need to understand what are cooperative organization. This word has been inherited from the word cooperation. Each for all and all for each. One for all and all for one. The Indian Cooperative Act, Societies Act of 1912. The Indian Cooperative Societies Act of 1912 defines cooperative in section 4 as society which has its objectives as the promotion of economic interest of its members in accordance with cooperative principles. तो जो आपका इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है 1912 का, वो अपने सेक्शन 4 के अंदर इसको इस प्रकार से डिफाइन करता है: society which has its objective as the promotion of economic interest of its members in accordance with cooperative principles. तो जो ये सोसाइटीज क्रिएट की जाती है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ये अपने मेंबर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हैं, एंड दे वर्क फॉर दैट सेक. क्योंकि जब कंपनी ग्रो होती है तो इक्वली द मेंबर्स, दोज हु आर द पार्ट ऑफ द कंपनी, दे आल्सो ग्रो. So the Indian Cooperative Societies Act of 1912. अब बच्चों, as you all know that we provide you utmost details of all the major points. तो हमने इस पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं of Cooperative Societies Act of 1912. So let's have a look towards that. तो बच्चों, we have taken 5 most important pointers here, जो कि आपकी बुक में से नहीं है, बट यस, दे आर फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1912. अब हम पहला पॉइंट ले लेते हैं, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन. किसका? एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. द लॉ हेल्प्स ग्रुप्स ऑफ पीपल क्रिएट एंड ऑफिशियली रजिस्टर अ कोऑपरेटिव टीम. तो ये जो है लॉ, हमारा लॉ इस चीज को प्रमोट करता है कि कोऑपरेटिव्स को ले और ऑफिशियल को रजिस्टर किया जाता है, एंड द टीम स्टार्ट्स वर्किंग. दिस इज अबाउट फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन. सोसाइटी फॉर्म होगी और फिर उसको रजिस्टर कर दिया जाएगा. सेकेंड, कैपिटल एंड शेयर लिमिटेशन. It set rules so that no one member can own too much of the cooperative's money, making sure everyone has a fair. तो यहां पर जो बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है, वो भी लगभग इक्वल है, किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं. और इस बात का तो खास ख्याल रखा जाए, एवरीबडी गेट्स इक्वल मनी, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, वो जिस मर्जी पोजीशन. दैट इज व्हाट कोऑपरेटिव. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और बहुत ज्यादा नहीं. डिविडेंड रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी ऐसा पैसा है जो प्रॉफिट्स में अर्न किया जाता है तो डिविडेंड रिस्ट्रिक्शंस भी होती है. There are limits on how much extra money, that is dividends, a cooperative can give to each member, preventing one person from getting too much. तो यहाँ पे restrictions है कि जो भी dividends extra money earn करेगी कंपनी, उसको सब में डिस्ट्रीब्यूट एक लिमिटेड अमाउंट में करेगी. बहुत ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाए. ये ना हो किसी एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाए और किसी के पास बिल्कुल ही ना हो. तो इस बात का खास ध्यान रखा जाता है. कोऑपरेटिव्स, एक दूसरे को कोऑपरेट किया जाता है. फोर्थ पॉइंट, गवर्नमेंट ओवरसाइट. द गवर्नमेंट कीप्स एन आई ऑन द कोऑपरेटिव्स, मेकिंग श्योर दे फॉलो द रूल्स, सबमिट ईयरली रिपोर्ट्स एंड ऑपरेट ट्रांसपेरेंटली. तो ये बच्चों जो कोऑपरेटिव्स होती हैं, दे वर्क अंडर द स्कैनर ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के स्कैनर के नीचे काम करते हैं, एंड गवर्नमेंट कीप्स एन आई ऑन देम.
तो ये सारे रूल्स फॉलो करने के लिए बाध्य है। ऐसा नहीं है कि बस कोऑपरेटिव खोल ली और अपनी मर्जी से काम चल रहा है। तो दे सबमिट ईयरली रिपोर्ट्स एंड दे हैव टू ऑपरेट ट्रांसपेरेंटली। फिफ्थ पॉइंट, liquidation and dissolution of a cooperative. If a cooperative needs to be closed down, the law provides steps for a proper shutdown, ensuring everyone's money and belongings are handled correctly. तो अगर इसे बंद भी करना है तो उसके एक प्रॉपर मेजर है, प्रॉपर तरीका है, और उसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1912 है, फर्स्ट इज फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन, कैपिटल एंड शेयर लिमिट, डिविडेंड रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट ओवरसाइट एंड लिक्विडेशन एंड डिसोल्यूशन। तो दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट आपको पता है कि जब भी आप मेविक्स इंडिया की क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपको विल ट्राई टू गिव यू मैक्सिमम दैट वी कैन फ्रॉम आवर साइड। द लिस्ट ऑफ ऑल द फीचर्स, अब मैं कुछ लिस्ट को शेयर कर रहा हूं आपके साथ। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, सर्विस मोटिव, कैपिटल एंड रिटर्न देयर ऑन, गवर्नमेंट कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस। तो ये सारे फीचर्स हैं एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के। अब जब भी आप इन फीचर्स को पढ़ेंगे तो बट ऑब्वियसली यू नीड सम एक्सप्लेनेशन टू। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको इनकी एक्सप्लेनेशंस दी। लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स देम। लेट्स टेक देम अप वन बाय वन। द फीचर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला पॉइंट ले लेते हैं वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का। कोऑपरेटिव इज अ सेल्फ हेल्प एज वेल एज म्यूचुअल हेल्प सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जिबिटिंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चों ये काम किस प्रिंसिपल पे करती है? सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प सिस्टम। अपनी मदद कीजिए और लोगों की मदद कीजिए। A cooperative organization operates on the principles of voluntary association. अपने मन से आपने, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया, आपने अपने मन से इसको ज्वाइन किया। Allowing individuals with a common objective to join and leave freely. आप इसे ज्वाइन भी फ्रीली कर सकते हैं और छोड़ भी फ्रीली कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आप इसमें रेगुलरली काम कर रहे हैं तो दैट इज वॉलंटरी, वो अपने मन से कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, this emphasis on voluntary participation ensures that members can engage without facing coercion and intimidation. तो इसका मतलब बच्चों ये है किसी पर कोई दबाव नहीं ज्वाइन करने का और छोड़ने का। ज्वाइन भी आपने अपनी मर्जी से करनी है और छोड़नी भी आपने अपनी मर्जी से। This democratic approach contributes to a sense of inclusivity and collaboration within the cooperatives. और बच्चों जो ये डेमोक्रेटिक अप्रोच है इससे ही लोगों के अंदर एक दूसरे की हेल्प की भावना जागृत होती है, लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं और धीरे धीरे कोऑपरेटिव्स बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टार्ट छोटी होती है बट व्हेन पीपल दे कीप ऑन हेल्पिंग ईच अदर एंड सपोर्टिंग ईच अदर एंड कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर, तो ये कंपनीज ग्रो कर जाती। Let's move on to the second point, that is the democratic management. It has been managed in a democratic way. The cornerstone of cooperative organization management lies in democratic principle. Members elect a managing committee based on one member one vote system. तो सारे मेंबर्स मिलके एक मैनेजिंग कमेटी फॉर्म कर देते हैं, एक ऐसी कमेटी जो पूरे प्रोसेस को मैनेज करती है। और यहां पर जो कॉन्सेप्ट चलता है, एक आदमी एक वोट। This democratic structure ensures that decision making reflects the collective will of the members. तो इस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो डिसीजन मेकिंग कंपनी में की जाती है, इट इज द विल ऑफ द
मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक मैनेजिंग कमेटी बन गई तो उन्हीं की विल चलेगी, नहीं। उनको सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा ये लोगों का डिसीजन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पॉइंट है ना, नजरअंदाज करने वाला नहीं, इसको अवॉइड करने वाला नहीं है। मैं दोबारा लेता हूं, थर्ड, दिस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग रिफ्लेक्ट्स, जो डिसीजन लिए जाएंगे वो क्या रिफ्लेक्ट करेंगे, द कलेक्टिव विल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, by embracing democratic values, cooperatives foster transparency। ये प्रमोट करते हैं ट्रांसपेरेंसी को। सबको सब कुछ पता होता है, किसी से कुछ नहीं छुपाया जाता, सबकी सैलरीज एक सी होती है, सब लोग एक ही तकरीबन लेवल पे काम करते हैं, तो कुछ छुपाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अकाउंटेबिलिटी, सबकी अपने काम के लिए अकाउंटेबिलिटी। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। जो आदमी जो काम कर रहा है उसके लिए अकाउंटेबल, उसकी ओनरशिप लेता है। वो ये नहीं कहता था एंड में आके भैया मुझे समझ नहीं आया कि कैसे काम गलत हो गया। एंड द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ देयर मेंबर्स इन ऑर्गेनाइजेशनल अफेयर्स। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स। ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है, क्या प्रोडक्ट्स बनाने हैं, कितने अमाउंट में बनाने हैं, क्या क्वालिटी रखनी है, वेयर टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम। सो दे पार्टिसिपेट इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल अफेयर। तो इट्स अ डेमोक्रेटिक सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट। सर्विस मोटिव है इनका। जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है इनको स्टार्ट करने का मेजर मोटिव ये है कि इसके बेसिस पर बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाए कम से कम दाम के ऊपर। What sets cooperative organization apart is their primary focus on rendering services to members rather than maximizing profits. तो ये प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज नहीं करते हैं, दे प्रोवाइड बेस्ट सर्विसेज टू द मेंबर्स। Second point, this service-oriented approach aligns with the cooperative's ethos, emphasize mutual benefit and shared prosperity। और जो सर्विस होती है ये अलाइंड होती है एक अप्रोच के तहत, विच अलाइंस विद द एथिक्स। एथोस को मत कहते, एथिक्स जो सही गलत चीजें होती है, एथिक्स होते हैं कंपनी के, उससे अलाइन की जाती है। जो सर्विस इनकी होती है वो एक सीध में चलती है किसके साथ, along with the cooperative ethos, जो उसके एथिक्स बनाए होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए होते हैं। एम्फेसाइजिंग म्यूचुअल बेनिफिट एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, सबका फायदा और प्रॉस्पेरिटी सबकी हो, ये नहीं एक ही व्यक्ति की हो। दैट्स व्हाई दीस कोऑपरेटिव्स दे आर थ्राइविंग एंड ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। थर्ड पॉइंट, दिस कमिटमेंट टू सर्विस फॉस्टर द सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड सॉलिडेरिटी। जब सबकी हेल्प होती है, जब सब ग्रो करते हैं, तो एक कम्युनिटी फॉर्मेशन होती है, लोग कम्युनिटी फॉर्म कर लेते हैं ऑफ कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर। और इससे क्या आता है, समाज में ऑर्गेनाइजेशन में सॉलिडेरिटी आती है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग बन जाती है, प्रमोटिंग द वेल बीइंग ऑफ द एंटायर कोऑपरेटिव। फिर जब लोग स्ट्रांग होते हैं तो बट ऑब्वियस है जिस घर में वो रहते हैं, जिस कंपनी को चलाते हैं, वो भी स्ट्रांग हो जाता है। दैट इज द एंटायर कोऑपरेटिव। सो सर्विस मोटिव इज देयर। एक व्यक्ति ना ग्रो करे, सब करें, सबको म्यूचुअल बेनिफिट हो। अगर कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो सब प्रॉस्पर करें, ये ना हो कि एक ही व्यक्ति प्रॉस्पर करे। और कंपनी के जो कोऑपरेटिव एथोस है, जो एथिक्स है, जो रूल्स रेगुलेशंस है, इसके तहत सारा काम किया जाए। इसका मोटिव क्या है, सर्विस मोटिव। कैपिटल एंड रिटर्न देयर ऑन। फर्स्ट पॉइंट, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट मनी टू रन देयर बिजनेस फ्रॉम द पीपल हु जॉइन देम। तो कोऑपरेटिव्स को कैसे चलाया जाता है, विद द हेल्प ऑफ द पीपल दोज हु हैव जॉइंड देम। जॉइनिंग फीस देते हैं और इसके बेसिस पर कंपनी चलती है। एंड दीज पीपल आर कॉल्ड मेंबर्स, और इन्हें मेंबर्स कहा जाता है। To become a member, people can buy shares in the cooperative
which means they own a small part of the cooperative. There are limits on how many shares one person can buy to make sure everyone has a fair chance to be a part of. तो हर जो मेंबर होता है वो शेयर्स खरीद लेता है अपने अपने, और एक इक्वल अमाउंट के शेयर्स खरीद सकते हैं, ये नहीं कोई ज्यादा खरीद ले कोई कम खरीद ले. एंड दैट्स हाउ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस दे आर बीइंग रन, एंड दे कलेक्ट मनी. Second point. Now here is the interesting part. Once you buy these shares, you cannot easily sell them to someone else. एक बार आपने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स खरीद ले, अब आप इन्हें किसी दूसरों को नहीं बेच सकते easily. This rule is in place to make sure that people who join are committed for the long run. और ये रूल इसलिए रखा गया है कि जो लोग इसको ज्वाइन करें वो कमिटेड रहे लंबे समय तक के लिए. It is like saying, if you are going to be part of our group, we want you to stick around and be involved for a while. जिसका मतलब ये है कि अगर आप हमारे ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप काफी देर हमारे साथ जुड़े रहें, ये हमारी डिजायर है, हमारी मंशा है. Also, third point, also when the cooperative makes profit, extra money after covering all the costs, they share some of it with the members. और वो कुछ पैसा उसमें से मेंबर्स के साथ भी शेयर करते हैं. बट देयर इज अ रूल दैट दे वोंट गिव मोर देन 9% ऑफ द प्रॉफिट टू एनी ऑफ द मेंबर्स. एक रूल है कि 9% से ज्यादा किसी भी मेंबर के साथ प्रॉफिट को शेयर नहीं कर सकते. तो आई जस्ट मार्क दिस पॉइंट, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और बच्चों आपको ऐसे पॉइंट सिर्फ मेवरिक्स इंडिया की डिटेल्ड क्लासेस में ही मिले. हम भी चाहे तो हम भी आपको एक सिनॉप्सिस देके वी कैन टेक दीज क्लासेस, बट व्हाट वी वांट, we try to cover each and every point with the students because these are lectures and they need to provide students with all the inputs the topic covers. तो हम इसको सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, बट वी टीच द स्टूडेंट सिंसियर. एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करवाते हैं, रिगरस प्रैक्टिस सेक्शन देते हैं आपको, so that in the end the benefit goes to the students. This rule comes from a law called the Cooperative Societies Act from the year 1912. This way everyone gets a fair share, and the cooperative's main focus is on taking care of its members rather than just making lots of money. तो बच्चों ये पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एंड रिटर्न देयर ऑन. Let's move on to the next point, that is 3.5, government control. 4 points are there. Let's take up the first one. The operations of the cooperative societies in India are regulated by the Cooperative Societies Act and State Cooperative Societies Act. तो बच्चों जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंडिया में चलाई जाती हैं वो रेगुलेट की जाती हैं बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर. This regulatory oversight overseen by the registrar of the cooperatives ensure compliance with legal standards. और बच्चों जो ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, इसके अंडर ये इंश्योर किया जाता है कि जो कंपनी फॉर्म हो वो कंप्लाई करे लीगल स्टैंडर्ड्स के साथ जो इस एक्ट ने मुहैया करवाए. Cooperatives are required to submit annual reports and accounts promoting transparency and accountability. This word is very powerful. Ownership and accountability is very powerful. तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भैया जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट हमें आपने हर साल सबमिट करनी है. और जब आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो इसका मतलब है यू आर अंडर द स्कैनर, एंड इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, so government is always ready to support you under the laws of the government. Fourth point, government controls provides a framework to safeguard the interest of members and overall stability of cooperative societies. तो जब गवर्नमेंट का कंट्रोल आता है वो प्रोवाइड करती है फ्रेमवर्क, एक टूल प्रोवाइड करती है कि आपके जो भी इंटरेस्ट है उन्हें सेफ गार्ड किया जा सके, उन्हें बचाया जा सके.
and overall stability मिलती है organization को. Even the employees feel stable, and that's how government controls all these cooperative societies. Next point, that is 3.6, distribution of surplus. अब जो ज्यादा पैसा आता है उसे कैसे किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. When a cooperative, a group of people working together makes extra money after paying everyone and covering costs, they share it with the members. This sharing is called dividend. तो बच्चों आपने बिल्कुल इसे मिसअंडरस्टैंड नहीं करना. इस शेयरिंग को कहा जाता है डिविडेंड, and it's a very important point. Now the extra money that's left after giving dividend is shared among the members based on how much each person contribute. डिविडेंड्स देने के बाद जो पैसा बचता है वो पर व्यक्ति की कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली उसके साथ बांट लिया जाता है, उसे दे दिया जाता है. द कंट्रीब्यूशन इज यूजुअली मेजर्ड बाय द थिंग्स दे बॉट फ्रॉम द कोऑपरेटिव. और जो कंट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार से माना जाता है कि जो चीजें उन मेंबर्स ने कोऑपरेटिव में से खरीदी. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, we should not ignore this. The contribution is usually measured by the things they brought from the cooperative. So if you bought more stuff, you will get bit more extra money. Third point. This way, everyone in the cooperatives get a fair piece of the extra money, and it helps everyone have a little more money to use. It's like a way of making sure that everyone benefits and that the cooperative works together for the good of all its members. तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है पैसे का वो इक्वल किया जाता है. Everyone gets an equal share. तो इससे बेनिफिट क्या है? The mentality, the love for the organization remains same with everyone, and this provides stability and strength to the organization to thrive and grow when everyone is treated fairly and equally. एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बच्चों यहाँ पे. यह पॉइंट नंबर 4. Entrepreneur does not find this form as a very desirable structure to start a new venture. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो entrepreneur को ये चीज थोड़ी सी कम यूज की लगती है, क्योंकि उनका जो विजन है वो बिल्कुल दूसरा होता है. उसके कुछ कारण है, और कारण ये है क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस. पहला है कि एक एंटरप्रेन्योर चाहता है कि वो बेस्ट से बेस्ट चीज प्रोड्यूस कर सके. ड्राइव फॉर इंडिपेंडेंस, और मैं जो भी काम करूं उसमें इंडिपेंडेंट होकर टुगेदरनेस में ना कर. टेंडेंसी टू बी प्रोजेक्ट चैंपियन, और की टेंडेंसी होती है कि उनको एक चैंपियन माना जाए. जो भी वो काम स्टार्ट करे उसमें बेस्ट बने, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो सर्विसेज हो. स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड एंड अर्न प्रॉफिट, मैं आगे बढ़ूंगा और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न मैं ही करूं. कोऑपरेटिव में सब करते हैं, यहाँ पे इसलिए थोड़ा डिजायरेबल कम है उनके लिए. क्रिएटिव एंड इनोवेटिव नेचर, उनकी नेचर बहुत क्रिएटिव होते हैं. वो चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाए, उसे अच्छे प्राइस पे बेचे, अच्छा प्रॉफिट अर्न करे, एंड दे आर ऑफ इनोवेटिव नेचर. नेक्स्ट पॉइंट इज मस्ट बी ओन बॉस एटीट्यूड. उन्हें लगता है कि वो एक बॉस की तरह काम करे, एंड ही कुड कंट्रोल पीपल, and he could make people work for him, and the maximum profit should come into his pocket. Love for being a leader in the field. उसे लगता है कि मैं काम स्टार्ट करूं तो I should be considered the leader in the specific area for which I am working. Zeal to capture major market share, और इनकी zeal होती है कि जिस प्रोडक्ट जिस सर्विस को बना रहे हैं उसमें मैक्सिमम मार्केट शेयर उन्हीं के पास हो. तो इसलिए it is less desirable structure for an what cooperative organization. फिफ्थ पॉइंट, नो फॉर्म इज विदाउट मैरिट्स एंड लिमिटेशंस. तो बच्चों याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी आप काम करते हैं, इट इज नॉट विदाउट मैरिट्स एंड लिमिटेशंस. उसके प्रॉस हैं, कौन से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. लेट्स टेक 3 ऑफ देम. Entrepreneur needs to understand it better that no form is the best. Entrepreneur को ये
समझना चाहिए कि कोई भी फॉर्म बेस्ट फॉर्म नहीं हो सकती। हर एक फॉर्म के अंदर कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार के डिसएडवांटेज जरूर, एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी। तो इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द वेंचर यू आर रनिंग। Entrepreneur needs to understand it better that no form is the best form। आप ये नहीं कह सकते कि एक स्पेसिफिक बिजनेस है वो बेस्ट बिजनेस है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हर जगह है। Second point, thus selection of an appropriate form of business organization is a very difficult decision। तो आपकी जो चॉइस है, आपका पैशन है, और जो एक बेस्ट बिजनेस है, वो दोनों डिफरेंट चीज, एक डिफिकल्ट डिसीजन। Sometimes people starts working on the basis of their passion, and sometimes people take uh, valuable suggestions from other entrepreneurs, and then they start accordingly whichever business seems to be more profitable। Take difficult choice। Third, with regards to special requirements of the enterprises, price, if any, mostly the selection of a firm is largely affected by कुछ pointers हैं। With regard to special requirements of the enterprise, if any, कोई अगर special type की enterprise वो चलाना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो सिलेक्शन फॉर्म को इफेक्ट करते हैं, बहुत सारे ट्रेड्स हैं। वो कौन कौन से ट्रेड्स हैं? लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स देम। फर्स्ट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज को चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए। सेकेंड इज रिस्क एंड लायबिलिटी। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे प्रोडक्शन कर रहे हैं चाहे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें रिस्क है और आपके ऊपर बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी, लायबिलिटी है आपके ऊपर। मैनेजरियल कंट्रोल डिजायर्ड। कोई भी आप ऑपरेशन चलाएंगे तो यू नीड मैनेजर्स टू मैनेज द कंप्लीट ऑपरेशंस एंड इट्स कंट्रोल। आप इसे कंट्रोल करना सीखेंगे या लोगों से करवाएंगे। तो आप अपने बेसिस पे सब कुछ नहीं कर सकते, यू रिक्वायर टीम फॉर दैट। मैनेजरियल कंट्रोल डिजायर्ड का मतलब है कि भाई आप अपने से सब कुछ नहीं कर सकते, यू रिक्वायर ईदर दो स्किल्स ऑफ अ मैनेजर और यू रिक्वायर पीपल इन योर टीम दोज हु आर गोइंग टू मैनेज योर ऑपरेशंस। स्केल ऑफ ऑपरेशंस इन्वॉल्व। और जैसे जैसे ऑपरेशंस आप करेंगे तो कंपनी को आगे स्केल अप बढ़ना भी चाहिए, ऑपरेशंस बेटर भी होने चाहिए ताकि कंपनी को प्रॉफिट्स मिल सके। कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी डिमांडेड। कंपनी चलती रहे और स्टेबल रहे। स्टेबल का मतलब है कंपनी के खर्चे निकल रहे हैं, लोगों की सैलरियां जा रही है, आपके प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, कंपनी चल रही है, कंपनी स्टेबल। आपको ये नहीं है कि सैलरीज लेने के लिए भी ना आपको बाहर से पैसा उठाना। तो यू आर स्टेबल, यू आर मैन्युफैक्चरिंग, यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, यू आर गिविंग सैलरीज, सो एवरीथिंग इज स्टेबल नाउ एज ऑफ। इसका मतलब है आपका बिजनेस इज रनिंग। गवर्नमेंट रेगुलेशंस इन्वॉल्व। आप कोई भी बिजनेस, अगर प्रोप्राइटरशिप में थोड़ा कम रिस्ट्रिक्शंस है, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपको गवर्नमेंट स्कैनर के अंडर रहना अनिवार्य। टैक्स बर्डन ऑन द एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्राइज। टैक्स बर्डन है, आप पैसा एक लिमिट से ज्यादा कमाएंगे, यू हैव टू पे द टैक्सेस एज। नेचर ऑफ द बिजनेस, व्हाट सॉर्ट ऑफ बिजनेस यू आर रनिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स रिक्वायरमेंट्स। प्रोडक्शन है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, रॉ मटेरियल है, फिनिश प्रोडक्ट्स है, पैकिंग मटेरियल है, यू रिक्वायर एवरीथिंग फॉर दैट। Confidentiality required, you should not be sharing all the secrets of your business with other people। उसके लिए आपको confidentiality required है। You need to act as a mature person। neither you should act, you should become a mature person। Flexibility desirable। कभी कभी आपको flexible भी रहना है। Sometimes you have to in order to win the whole war you have to lose certain battles as well। sorry, in order to win the web battle you have to lose certain wars as well। छोटे छोटे wars आपको हारनी पड़ सकती है। No single factor can help to decide the form, thus it's a summative effects of the factors to be taken into consideration before opting a form of business ownership। तो अगर आपको बिजनेस ओनरशिप लेनी है तो आपको इन 10 फैक्टर्स को दिमाग में जरूर रखना है। विदाउट इट एन एंटरप्रेन्योर कैन नॉट टेक डिसीजन ऑफ ऑप्टिंग फॉर अ बिजनेस और ओनरशिप। So, Bacho, with this, we have come to the end of today's class where we have taken 5 points. First one is let's understand the term cooperative. Second is the Indian Cooperative Societies Act of 1912, जहां पर मैंने आपके साथ 5 pointers discuss किए थे. The list of all the features. Entrepreneur does not find this form as very desirable. And last but not the least,
No form is without merits and limitations. So बच्चों, after going through this class, you must have understood what exactly a cooperative organization, how it functions, and on the basis of which act, the Act of 1912, it operates. So I have given you the list of all the features. I have given you why it is not very desirable for the entrepreneurs, and I have given you n number of options on no form is without merits and limitations. I hope you have understood each and everything from today's class. So बच्चों, without much ado, let's move on to rigorous practice section. आज की क्लास में से आपके लिए मैं लाया हूं आज का synopsis, vocabulary from the session, the words in English as well as Hindi, 10 short questions from the session with answers, 10 objective type questions. तो आपने करना क्या है, आपने पूरी क्लास देख ली है और धीरे धीरे करके पूरा रिगरस प्रैक्टिस सेक्शन आपने पूरा करना है. उसके बाद आपको मिलेगा ट्रू एंड फॉल्स फ्रॉम द सेशन, उसके आंसर्स मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे और उसके आंसर्स. बच्चों, हमें ये लगता है आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन व्हाट एग्जैक्टली students require in order to score marks, we have designed this rigorous practice section. आपको किसी प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप में मदद की जरूरत हो, किसी प्रकार के आपके क्वेश्चंस हो, तो आप मैसेज बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, क्वेश्चंस डाल के भेज सकते हैं. Me and my team, we will surely revert back to you within 24 hours of receiving the questions. So, बच्चों, until we meet next time, bye bye for now. God bless you all. Take care and keep studying, keep evolving, and keep becoming better.